How many of you are joining our sessions for the first time? Mitsuji is joining for the first time. Okay. तुझे मोबाईल आहे कनेक्ट कट I कट am going to mute everyone. Let me mute all. Okay. So many people, some of them have been joining for the first time. Okay. How many of you have heard about the Cori reading? किस किसने सुना है कि कौरी रीडिंग से हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं? And how many of you have heard about it, that about this ancient technique of Cori reading? Not heard. Some of them have heard. Okay. You have heard, Meenakshi ji. Okay. Yes, like from small age, I've heard people, astrologers use it to predict and all that. I'm Yes. aware of it, but first time I'm going to learn about it from you. So really Yes. happy. Yes. Yes. It is very popular in South India. So most of the astrologers in South India, they use it. Today's session recording will be available for some time, like say 3 to 4 days, so that you can make notes. You can, we will be learning today on how to do the yes or no reading with the four Cories. So you will get the recording access for say 4 to 5 days so that you can make notes from today's session. So, since some of you have been attending it for the first time, I want to take this opportunity quickly to introduce Yana's Healing Studio, and then I will be very happy to introduce my own self. So, Yana's Healing Studio is a platform which is like a one stop solution for healing, consulting, spiritual workshops, and everything happens at one platform. Siddhiji is the founder of Yana Sailing Studio. She herself have personally worked with more than 11,000 plus people in the last couple of years and have helped them to elevate their life, to elevate their lifestyle, to transform themselves and work with spiritual and ethics. And she's helped so many of us. I'm also one of them. I also started my journey by learning some of the modalities from her. She's a master of 100 plus modalities, and we have spiritual training, spiritual consultation, spiritual supplies, everything available at Yana Sailing Studio. One of our other verticals is Shri Karya Siddhi, where we have spiritual pujas, havan, attunements, transmission, healing. ये सब हम वहाँ पर करते हैं. And I am Vasudha. I have been working with Siddhi ji for more than 1 year, and I have been knowing her for more than 3 years almost. And it's been an amazing journey. I'm very, very grateful to Yana's Healing Studio platform and Siddhi for giving me this opportunity to come and share my occult knowledge here. I worked in corporates for almost 17 years. I was working as an HR manager with very good brands in Mumbai. I'm based out of Mumbai. I have mastered more than 50 plus modalities. And my core skills have been tarot reading, numerology, graphology, signature handwriting analysis, Vedic science, जैसे Kori Vidya, pendulum dowsing, all these Vedic divination tools has been one of my expertise. Lama Fera healings, violet flame healings, wristwatch analysis, and so on. So it's been an amazing journey. I'm a very, very passionate occult science practitioner, and recently I was recognized by Max Life Insurance for giving an empowerment lecture for the women at Max Life. So it's been an amazing, amazing journey. Let's understand today something about Gauri. तो कौरी रीडिंग की स्टोरी से शुरू करते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौरी डिविनेशन है क्या. कौरी डिविनेशन को क्या कहते हैं.
सो सबको बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता होगा, राइट? ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बिग बैंग थ्योरी। जो भी आज ऑकल्ट की नॉलेज जानता है उसको बिग बैंग थ्योरी के बारे में जरूर पता होगा। सो जब बिग बैंग थियरी हुई थी उसके पहले ओरेकल नाम का एक प्लैनेट हुआ करता था। अर्थ ओरेकल के बाद में आया है। तो ओरेकल नाम का प्लैनेट हुआ करता था जहां से हमको गाइडेंस मिलते थे। सो जो ओरेकल कार्ड्स हम पढ़ते हैं, जैसे वी हैव एंजल कार्ड्स, काफी लोग ये कार्ड रीडिंग करते हैं एंजल कार्ड्स की। दीज आर ओरेकल कार्ड्स, क्योंकि इसमें से हमको गाइडेंस मिलती है, इसमें हमको एक डायरेक्शन मिलती है और एक गाइडेंस मिलता है। बिल्कुल उस टाइम से ये विद्या एग्जिस्ट करती है जिसको कहा जाता है कौरी। इसके पहले एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ कुछ भी नहीं था, तभी से कौरी से प्रश्न उत्तर करे जाते हैं। गौरी इज ए डिविनेशन टूल। अब आप में से यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स कि आपके हिसाब से डिविनेशन क्या है, आपको क्या लगता है कि डिविनेशन क्या है, या फिर आप कौन से डिविनेशन के टूल्स जानते हो, ये आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। टू नो द डिवाइन आंसर, ओके। और क्या लगता है किसको कि व्हाट इज डिविनेशन? ओके। सो डिविनेशन का सिंपल सिंपल मतलब बस यही है कि ये एक तरीका है आपको आपके यूनिवर्स से कनेक्ट करने का। आपके लिए यूनिवर्स कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर हायर सेल्फ, इट कैन बी गणेशा, इट कैन बी लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, इट मे बी एनी वन। सो जो भी वो हायर, अभी हमारी लैंग्वेज में अगर कोई हमारा बुरा कर देते तो हिंदी में बहुत पॉपुलर है, सब बोलते हैं ऊपर वाला सब देखता है। दे से दैट वो ऊपर वाला इज नो बडी बट द डिवाइन फोर्स, जहाँ से हमको गाइडेंस मिलती है, जहाँ से हमको कुछ क्लैरिटी मिलती है, और जहाँ से हम अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सके, ऐसा एक डायरेक्शन मिलता है। सिंपल शब्दों में डिविनेशन यही है। डिविनेशन इज वन ऑफ द वेज जिससे हम कनेक्ट होते हैं डिवाइन से, और हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर या क्लैरिटी हम ले सकते हैं थ्रू सिंबल्स, थ्रू साइंस, थ्रू एनर्जी, थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एंड सो ऑन। सो ये जो हिडन मैसेजेस हमारे लिए होते हैं ये हम समझते हैं डिविनेशन से। सिंपल डिविनेशन का मतलब यही है। तो उसमें से कौरी डिविनेशन कहाँ होता है, कौरी डिविनेशन क्या होता है? सो कौरी डिविनेशन एक ऐसी टेक्निक है जो एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत पहले इसका आविष्कार हुआ था। ये एक ऐसा मीडियम है जो शिव और शक्ति दोनों की एनर्जीज को कैरी करते हैं, और जब हम इनसे कनेक्ट करते हैं तो ये हमको एक डायरेक्ट गाइडेंस देते हैं, हमको एक दिशा दिखाते हैं और हमको क्लियर यस और नो का उत्तर बता देते हैं। तो कॉरीज में अलाइनमेंट बेस्ड वर्क है ये, बस उसका एक मंत्र है जो हम आज सीखेंगे। उस मंत्र से हमको कनेक्ट करना है कौरी में। जो जो चार कौरियाँ लेकर आए हैं, वी विल डू सम लाइव रीडिंग्स, वी विल डू सम प्रैक्टिकल स्टडी। ऐसे सवाल जिनके यस और नो में आप उत्तर चाहते हो वो आप आज से ही सीख के अपने आप के लिए कर सकते हो। ओरिजिन कहाँ से आया कौरी रीडिंग, या कौरी हमको मिली कहाँ से? सबसे सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा कॉस्मिक इवेंट है जिसको हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। सो जब समुद्र मंथन हुआ था तभी हमको बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज मिली थी, और उसी दौरान कौरी, गोमती चक्र, लाल कुंज, ऐसी बहुत सारी डिवाइन चीजें हमको मिली थी। तो पुराने जमाने में कौड़ियों को व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करा जाता था, इतना इसका महत्व होता है। इसमें एक करेंसी का एनर्जी के लिए यूज करे जाते थे। फिर अफ्रीका में भी इसका ओरिजिन होता है, क्योंकि अफ्रीकन आप देखोगे वो बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं जिसमें कौड़ी होती है, इयररिंग्स, नेकलेस, दे हैव कौड़ी। वो कौड़ी को बहुत डिवाइन मानते हैं। जो अफ्रीकन साइड के ट्राइबल है वो बहुत ज्यादा कौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कौड़ी में कौड़ी से उनको बहुत अच्छे जो भी ट्राइबल हीलर्स है, जो ओरेकल रीडर्स है, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, ये सब जो करते हैं हमेशा यू विल सी कौड़ी।
हमेशा आप वहां पर कौड़ी देखोगे। अब कौड़ी डिविनेशन सीखना जरूरी क्यों है? कौड़ी डिविनेशन हमको देती है इंस्टेंट क्लैरिटी। इसमें हमको किसी के डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है। मैं अल्पा जी के लिए रीडिंग कर सकती हूँ बिना उनकी डेट ऑफ बर्थ के, मैं मित्सु जी के लिए रीडिंग कर सकती हूँ बिना उनकी डेट ऑफ बर्थ के, मैं डॉक्टर अलीना के लिए रीडिंग कर सकती हूँ बिना उनकी डेट ऑफ बर्थ के। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन का खेल है। और कॉरी रीडिंग, पेंडुलम डाउजिंग और कॉइन डिविनेशन, ये तीन ऐसी टूल्स है जो हमारी इंट्यूशन को एनहेंस करता है। तो अगर हम बिगिनर लेवल में ये चीजें सीख ले तो हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छे से डेवलप होती है। I belong to a family. My Nana ji, my grandfather, he was a palmist and Kori reader. So I actually learned Kori reading देख देख के when I was in college. और तभी से ही आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट। मुझे बहुत ऐसे लगता था कि अरे नाना जी इतने सारे गांव वालों का भला कैसे करे, हाउ इज ही हेल्पिंग देम एंड हाउ इज ही गिविंग सो मेनी आंसर्स। जो भी आ रहे सब उनसे पूछ रहे हैं। यस मीनाक्षी जी, ट्राइबल्स इन तमिलनाडु ऑल्सो यूज इट। मोस्टली ट्राइबल पीपल बिलीव इन कौड़ी अ लॉट। उनकी ज्वेलरी, ड्रेसिंग, हर में कौड़ी होता ही होता है। तो कौरी रीडिंग हमको इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें एनर्जीज है शिव और शक्ति दोनों की। और जब शिव और शक्ति साथ में होते हैं तभी हमारा कॉन्शियसनेस एकदम ही अलग लेवल पर जाता है। क्या मेरी वॉइस आप लोग को कम आ रही है? और यू आर एबल टू हियर मी? जस्ट शो मी थम्स अप। ओके, तो आरपी जी आप एक बार अपनी ऑडियो सेटिंग्स चेक कर लीजिए और वॉल्यूम को एनहांस कर लीजिए। सो जब शिव और शक्ति का साथ में मिलन होता है तब इंट्यूशन बहुत रैपिडली ग्रो होता है। कौरी हमको हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेने से बचा सकती है। और ऐसी हिडन ब्लॉकेजेस को भी ये हमारे सामने लेकर आ सकती है। अगर हम सही सवाल पूछे तो हमको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हम कैसे काम करें, किस पे काम करें। ये बहुत ही अच्छी मोडालिटी है बिगिनर्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी। तो अगर हम टैरो, न्यूमरोलॉजी, रून्स, ऐसी कोई भी डिविनेशन टेक्निक्स जानते हैं तो उसके साथ में कौरी हम यूज कर सकते हैं टू गेट द वैलिडेशन ऑफ अवर रिजल्ट। जो हमको आया है वो कितना सही है, बिकॉज कौरी एग्जिस्टेड बिफोर देम। कौरी आया ही सबसे पहले। बस यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें क्वेश्चन सही पूछने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा नहीं पूछ सकते कि क्या मैं कल इंटरव्यू जाऊं या नहीं जाऊं। वी हैव टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन। क्या मैं कल इस कंपनी में इंटरव्यू को जाऊं? ऐसे भी नहीं। स्पेसिफिक, क्या मैं कल एबीसी नाम की कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाऊं? दैट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। इंट्यूटिव गाइडेंस को ट्रस्ट करना है। हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। जब भी हम कोई भी डिविनेशन टूल यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में पानी की मात्रा सही होनी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है और वाटर रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारी इंट्यूशन को। सो साइंटिफिकली जब भी आप रून्स की रीडिंग करते हो, यस मून को भी रिप्रेजेंट करता है। सो जब भी आप रून्स की रीडिंग करते हो, टैरो रीडिंग करते हो, पेंडुलम डाउसिंग करते हो, हमेशा हाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। और यहाँ पर हमको बस एक प्रेयर बोलना होता है जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉरीज भी होती है। सो वी हैव वाइट कॉरी, वी हैव येलो कॉरी। सो वाइट कॉरी को मोस्टली हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन वाली रेमेडीज में, इंसोम्निया वाली रेमेडीज में, जनरल डिविनेशन में। येलो और गोल्डन कॉरी बिल्कुल ऐसे दिखती है जैसे मेरे हाथ में है। तो ये हम लक्ष्मी पूजन में भी यूज करते हैं, दिवाली में, अक्षय तृतीया में। यस करेक्ट मित्सुची। सो ये यूज होता है हमारी पूजा में, रिचुअल्स में हम यूज करते हैं। तो इससे येलो हमको है ना हमेशा फास्ट ग्रोथ देता है। येलो को गुरु का कारक भी माना जाता है। तो हमको विजडम, लर्निंग, बिजनेस ग्रोथ ये सब कुछ मिलती है। और ऐसी रेमेडीज में हम बस येलो कलर की कौड़ी यूज करते हैं।
लाल कलर की कौड़ी भी आती है। सो लाल कलर की ना नेचुरल कौड़ी नहीं होती, उसको पेंट करा जाता है। जो वाइट कलर की कौड़ी है उसी को पेंट करा जाता है लाल कौड़ी में। तो लाल कलर की नेचुरल कौड़ी नहीं होती है, पर पीला, हरा या देन ब्राउन, ये सब नेचुरली होता है। सो रेड कॉडी हम यूज करते हैं जब हमको फर्टिलिटी रिचुअल्स करनी है, जब रिलेशनशिप की हीलिंग करनी है, या रिलेशनशिप के यंत्र को एक्टिवेट करना है, लव या अट्रैक्शन बढ़ाना है किसी में, तब हम यूज करते हैं रेड कलर की कॉडी। ब्लैक कलर की कॉडी आती है जो यूज होती है एंसेस्ट्रल रिचुअल्स में, जो जो यूज होती है नजर प्रोटेक्शन में, और जो यूज होती है नेगेटिव एनर्जी शील्डिंग में। ग्रीन कलर की कौड़ी आती है जो यूज होता है हार्ट चक्रा के पे काम करने के लिए, हीलिंग के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए, और जब हम एक कंसिस्टेंट इनकम चाहते हैं तभी भी हम यूज करते हैं। तो कौरी रीडिंग हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं यस और नो के लिए। हम यूज कर सकते हैं कौन से मेरे चक्रस ब्लॉक्ड है ये फाइंड आउट करने के लिए, कौन सा मेरा लकी डे है, मेरा लकी नंबर कौन सा है, कौन से ग्रह मेरे अच्छे हैं, कौन से नहीं है। ये सारी रीडिंग्स हम कर सकते हैं सिर्फ कौरी से। आप मैच मेकिंग भी कर सकते हो। अगर किसी के लिए लड़का ढूंढना है या लड़की ढूंढनी है, तो ये मैच मेकिंग भी होती है कौरी से। जैसे कुंडली में हम 36 गुण देखते हैं, राइट? टोटल 36 गुण होते हैं, और उसमें से कहा जाता है कि एटलीस्ट 16 इज द मिनिमम, उतने तो गुण मिलना जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट अ गुड मैच। तो ये मैच मेकिंग हम कर सकते हैं कौड़ी से। उसमें हमको लगती है 8 कौड़ियाँ। तो 8 कौड़ियों से हम कर सकते हैं मैच मेकिंग। हम कर सकते हैं रीडिंग जो डिसीजन वाले है, मुझे ये ऑफिस खरीदना चाहिए या नहीं, मैं इस एम्प्लॉय को हायर करूँ या नहीं। हम यूज कर सकते हैं किसी की एनर्जी रीड करने के लिए। अगर आप एक साइकिक रीडर हो, अगर आप ऑलरेडी रीडिंग्स कर रहे हो, तो आपको साइकिक गाइडेंस ऑटोमेटिकली आने लगेगा जब भी आप गौरी रीडिंग करोगे। हम यूज कर सकते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो सीखे हम कैसे यस और नो की रीडिंग करनी है यूजिंग 4 क्वेरीज। एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स एंड देन we will learn how to do the reading using 4 query. Okay, so let's learn this. If you're sitting on the chair, then make sure your legs are touching the ground. जब भी हम कोई भी डिविनेशन टेक्निक करते हैं, अवर लेग शुड बी टचिंग द ग्राउंड, वी शुड बी ग्राउंडेड, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप पैर फोल्ड करके बैठ रहे हो तब आप जमीन पे बैठ सकते हो, पर चेयर पे अगर बैठे हैं तो हमको पैरों के नीचे एक आसन रखना है। डायरेक्टली जमीन पर भी पैर नहीं रखे जाते। सो शुड कीप समथिंग बिलो योर लेग एंड देन कीप योर लेग ऑन द मैट, ऑन द आसन और समथिंग लाइक दैट। सो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। आप सब जाके अपनी अपनी कौड़ियाँ लेकर आइए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू हैव नॉट हैड वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, just have few sips of water because it is important to be hydrated. So I will wait for 2 minutes. आप सब जाकर अपनी कौड़ियाँ लेकर आइए, पानी का ग्लास लेकर आइए, and then we will start. Once everyone is ready, just type ready in the chat box. नो प्रॉब्लम अनिल जी, आप अभी सीख लेना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। 1 वीक के लिए आपके पास होगी रिकॉर्डिंग, और बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो लेट्स डू सम
Little bit of grounding. Let's close our eyes. Hold the cauries in your left hand and close them with your right hand. And just hold your hand like this. कॉरीज को लेफ्ट हैंड में रखेंगे और राइट हैंड से बंद कर देंगे. No problem. Whoever don't have cauries, you just learn the process and then later you can practice. So just close it with your right hand and keep the cauries in your left hand. And close your eyes. We are going to do some deep breathing 3 to 5 times. So inhale from your nose and exhale through your mouth. One more time. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. I will be chanting the mantra. You can repeat after me. We will be doing the 5 recitation of the mantra and connect with your beautiful goddess. Om Shreem Kapad Kapadin Namo Namaha. 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 Feel the vibrations of the beautiful caudies in your palm. Visualize the white light falling on the caudies and energizing them. Keep visualizing white light around you in your auric area and on the caudies. After the mantra recitation and white light visualization, touch the kauri on your heart chakra. Keep your hands on the heart chakra and we will again chant the mantra. Om Shreem Kapad Kapadin Namo Namaha. Feel the vibrations in your heart chakra. Now touch your hands on the third eye chakra and silently chant Om Shreem Kapad Kapadin Namo Namaha. Feel the vibrations and slowly you can open your eyes whenever you feel okay and just shuffle your energized bodies for a few times. Yes, I will type the mantra. I will type it. Let's learn the 4 Kauri reading. Now we have energized our Kauris.
So let's understand on how can we ask yes or no questions with the 4 cauries in our hand. This is the mantra. You can take the screenshot and I will also post it in the Zoom chat. I posted the mantra screenshot in the Zoom chat. Now, what do we do? So the process is going to be the same. You will energize your cauries with the mantra that we have learned. The meaning of this mantra, Om, is a primordial sound. Shreem is the Bija mantra of goddess Lakshmi. It represents prosperity, abundance. Kapard means kauri in Sanskrit. Kapardin is the name of Lord Shiva. He's the one who has a hair like a shell spiral. That is why he's called as Kapardin. And Namo Namaha is I bow to you again and again. So simple things what we are going to do. The name of Kauri spreads is African. As I said that कौरी का थोड़ा हिस्ट्री जो है ये अफ्रीकन भी है तो इसके जो स्प्रेड्स के नाम है ये थोड़े से अफ्रीकन है 4 कौरी में. The first spread is Alafia. When we say the Kauri mouth is open, this is the open mouth and this is the close. So now that we have energized it, you can ask any question. So hold your Kauris between your palms. When you're asking the question, you will chant the mantra first, minimum of 3 times. Om Shreem Kapat Kapatin Namo Namaha. Om Shreem Kapat Kapatin Namo Namaha. Om Shreem Kapat Kapatin Namo Namaha. Touch your third eye chakra and touch your heart chakra and ask a question. So, see, I'm asking a question. Does anyone have a yes or no question? We will do a live practical. Just raise your hand if you have a yes or a no question, and I will send you the unmute request. Okay, Ramya ji. Yes, Ramya ji. Ramya ji, you can unmute yourself. Will you raise your hand? Okay, I found you. So I have a question Yes. regarding my pregnancy. Whether Okay. I'm already old, so I just want to know whether it's my first pregnancy. I'm trying for it. So whether the baby will be normal and it will be successful this year. Okay. So you're trying for IVF? Yes. Okay. So I will ask a question. Will Ramya be? Can you tell me like how do you write your name, your full name? Ramya Vasant. Ramya Vasant. So I'll ask a question if Ramya Vasant's IVF is going to be successful in 2026. That will be a Yes. specific question. Okay, so now I'm asking a question for Ramya ji. So अभी हमने मंत्र चैंटिंग कर ली है, थर्ड आई चक्रा पे टच किया है, हार्ट चक्रा में टच किया है. क्वेश्चन पूछते पूछते यू विल शफल. सो आई एम आस्किंग, आप क्वेश्चन मन में पूछ सकते हो, जोर से पूछ सकते हो, इट्स अप टू यू. ऐसे शफल करके just open your hands on your altar. So I got 2 cauries open, which means it is going to be successful, Ramya ji. May the divine bless you. Keep chanting Thank you. Santana Gopal mantra 24 times minimum every day. Sure. And you just ping me on my WhatsApp number. I will send you a energy circle which will help you to make this event successful as a remedy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes, Manju ji. Hi, ma'am. Namaste. Namaste. I have a question for my mom. She's Okay, paralytic from last 3 years. 1 minute.
हाँ, just give me 1 minute, okay? I just have to tell how to cut the cords after question, फिर मैं आपका क्वेश्चन Okay, करती हूँ. So we okay. will do few readings. हम आज थोड़ी readings करेंगे. लास्ट सेशन में टाइम नहीं था. लास्ट सेशन में टाइम नहीं था तो रीडिंग्स नहीं कर पाई थी. आज हम थोड़ी रीडिंग्स करेंगे. सो आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू विल कट द कॉर्ड्स. कैसे कट करेंगे कॉर्ड? जैसे हाथ पकड़ना है एंड फ्रॉम योर क्राउन चक्रा टिल योर रूट चक्रा यू विल से आई कट द कॉर्ड्स विद सो एंड सो पर्सन. सो अभी मैंने रम्या जी के लिए रीडिंग करी. सो आई से आई कट द कॉर्ड्स विद रम्या जी, आई कट द कॉर्ड्स विद रम्या जी, आई कट द कॉर्ड्स विद रम्या जी. 3 टाइम्स करना है. सो आफ्टर एवरी रीडिंग आपको कॉर्ड्स कट करना जरूरी है क्योंकि आप किसी की एनर्जी से कर रहे हो. ओके मंजू जी, यस बोलिए, आपका क्या सवाल है? Hi, ma'am. I have a question for my mom. She's या paralytic from last 3 years. Whether she will get recovered this year or not, just want to know. ओके, टेल मी हर नेम. Jollu Krishnaveni. जय कृष्ण. Jollu जोल्लू कृष्ण. Krishnaveni. ओके, जोल्लू कृष्ण वेनी. Mm. ओके, तो फिर से हम रीडिंग करते समय वी अगेन हैव टू चैंट द सेम मंत्र मिनिमम 3 टाइम्स. सो वी विल से ओम श्रीम कपट कपर्तन नमो नमः. ओम श्रीम कपट कपर्तन नमो नमः. ओम श्रीम कपट कपर्तन नमो नमः. Touch your third eye chakra. Few seconds. Touch your heart chakra and ask a question. Will Jollu Krishnaveni recover from your health in 2026? It is going to take time. 2026 के लिए no आया है मुझे. I've got 3 Okay, cordis closed and 1 cordie open. okay, okay, ma'am. Okay. Okay, thank you so much. Yes, welcome. आप अपने आप के लिए भी कोई सवाल पूछ सकते हो. सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्प्रेड्स. थोड़ा सा हम लर्निंग कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस भी लेंगे. तो अगर चारों कौड़ियाँ ओपन आती है दैट मीन्स देर इज अ डिवाइन ब्लेसिंग. ये पीसफुल रहेगा, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है और चारों कौड़ी ओपन है तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली है और इसका नाम है अलाफिया. अलाफिया तब होगा जब चारों कौड़ियाँ ओपन आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्प्रेड है इटावा. इटावा में 3 कौड़ी ओपन आती है और एक क्लोज आता है. जब भी ऐसे आएगा इसका मतलब है मे बी, नॉट श्योर, स्टेबल नहीं है, अभी शायद ये काम नहीं होने वाला है. तो जब भी ट्राई अगेन आता है तो आप 3 से 7 दिन में फिर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हो. पर अगर हमको फुल ऑफ ब्लेसिंग्स आता है तो हम मिनिमम 11 to 21 डेज उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे. द नेक्स्ट इज इजीफे. इजीफे में 2 ओपन आता है और 2 क्लोज आता है. जैसे मुझे रम्या जी के लिए 2 ओपन आया था और 2 क्लोज आया था. इसका मतलब है एब्सोल्यूट यस. इसको फिर से हमें पूछना नहीं है मिनिमम फॉर 11 डेज और 21 डेज. सो अगर रम्या जी मुझे बोलेंगी कि 2-3 दिन बाद फिर से रीडिंग करनी तो मैं नहीं करूंगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट इट एज यस एंड आई विल ट्रस्ट दैट गाइडेंस. ओकाना सोडे या ओकानरन, इसमें एक ही कौड़ी ओपन आती है और 3 क्लोज आते हैं जैसे मुझे अभी मंजुलता जी के क्वेश्चन के लिए आया था. इट मीन्स नो, बिल्कुल भी ये काम नहीं होने वाला है. और लास्ट है ओएकुन. ओएकुन इज अ स्ट्रॉन्ग नो जब सारी कौड़ियां क्लोज आती हैं. व्हेन ऑल द कौड़ीज आर क्लोज्ड. So we'll take some more questions. If you have any questions, you can raise your hand and ask from what we learned. उसके अगर कोई भी सवाल है तो. ओके नेहा जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजती हूँ. मैंने अभी आपका चैट पढ़ा, बोलिए. हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया मैम. मैम, मेरा भी कंसीविंग का ही सवाल था. हम्म. ट्राई कर रहे हैं हम लोग भी, मतलब अभी तो ज्यादा नहीं हुए साल, बट फिर भी कॉम्प्लिकेशंस है. लाइक एक्टोपिक थी तो उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आया, तो हम्म. इसलिए उसी का ही क्वेश्चन पूछना है कि इस ईयर कंसीविंग हो जाएगा और हेल्दी प्रेगनेंसी होगी कि नहीं.
ओके, ये दो सवाल हो जाएंगे, है ना? तो हम एक कोई भी सवाल फिलहाल हम चेक करते हैं इस साल प्रेगनेंसी होगा या नहीं। अगर ठीक। वो यस आता है तो आपका फॉलो अप क्वेश्चन हम चेक करेंगे, है श्योर मैम। श्योर। ओके। ना? तो सेम प्रोसेस रहेगा। जिनके भी पास कॉडी है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लिए। यू कैन प्रैक्टिस। आप नेहा जी के लिए करिए या अपना कोई भी सवाल करिए। एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द चैट बॉक्स। सो लेट्स आज नेहा जी, आपका नाम ऐसे ही आप लिखती हो, नेहा शर्मा। यस मैम, सेम यस। So we will say the mantra minimum 3 times. Om Shreem Kapat Kapartan Namo Namaha. Om Shreem Kapat Kapartan Namo Namaha. Om Shreem Kapat Kapartan Namo Namaha. Touch your third eye chakra. Touch your heart chakra. Inhale Sharma. Then see in between. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस लग रहा है क्योंकि जैसे मुझे रीडिंग आई है। व्हाट आई डू इज, डू यू वांट मी टू ओपन द व्हाट्सएप ग्रुप? आप सब, आपको जो कॉडी आ रही है, जैसे आ रही है उसका फोटो आप भेज सकते हो ग्रुप में। आई हैव ओपन द ग्रुप। जैसे मैं अभी फोटो भेज रही हूँ मुझे जो नेहा जी के लिए आई है कॉडी। तो एक कॉडी है ना, पूरी ओपन भी नहीं है, एक के ऊपर एक सेटल हो गई है और एक ओपन है। जो हाउस ऑफ थर्ड आई है वो वाला ग्रुप मैंने ओपन कर दिया है। उसमें आप अपनी अपनी कॉडी का फोटो भेज सकते हैं और क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा आप प्रॉपर मेडिकल एडवाइस और ये सारी चीज़ों से ही आप करिएगा, क्योंकि फिलहाल आंसर क्लियर नहीं है। नो आया है पर एक कौड़ी ऊपर नीचे है। इट इज नॉट इवन स्ट्रेट और इट इज नॉट इवन खुला भी नहीं है, पूरा एकदम हाफ है। तो इसलिए हम कहेंगे इट इज एज ऑफ नाउ नॉट क्लियर। तो आप प्रॉपर डॉक्टर से ही एडवाइस लेकर चेक करिएगा। इसीलिए मैम मैंने आपको बोला था ना, क्योंकि डॉक्टर से एडवाइस लिया तो उन्होंने बोला सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, देन इसलिए मैंने आपको बोला था। यस पूनम जी, इट इज क्वाइट पॉसिबल जब दो लोग सेम क्वेश्चन का रीडिंग कर रहे हैं उसका आंसर अलग अलग आता है, क्योंकि एनर्जी का ही खेल है। मेरी एनर्जी अलग होगी जो मैंने नेहा जी से कनेक्ट करी है, आपकी एनर्जी अलग होगी जो नेहा जी से कनेक्ट करी है। जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सबको कॉन्शियसनेस से एक ही आंसर आएगा। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है। यस रम्या जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके So मैम, if we थैंक यू get सो मच। यस, थैंक यू नेहा जी। so if we get etava, it means that it is a no, right? करेक्ट। So it means that within 3 to 4 days, I can again ask the question. यस, विद इन 3 to 4 days यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। What about Okana soda? Like if we have one and it comes as a no, can we still try after 3 to 4 days and check? इफ इट हैज कम एज नो देन यू मिनिमम वेट फॉर 11 days, क्योंकि डिवाइन से ही नो आया है, द गाइडेंस इज नो। अभी इटावा में इट इज मे बी, दैट इज वाई वी आर आस्किंग दैट क्वेश्चन अगेन। बट वेन इट इज नो वी विल नॉट रिपीट इट फॉर मिनिमम 11 days। Okay. यस अनिल जी बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते अनिल जी। मैडम, मेरे बेटे का ये साल में शादी हो जाएगा, आप जरा बताइए। जिग्नेश शर्मा उनका नाम है। नाम बताइए। जिग्नेश ना, शर्मा। ओके। जी। ओम श्री कपट नमः। ओम श्री कपट कपट नमो नमः। ओम श्री कपट कपट नमो नमः। या जिग्नेश शर्मा की 2026 की। जिग्नेश जी रेडी नहीं है अभी पूरी शादी के लिए। क्या वो टाल रहे हैं प्रोस्पेक्ट देखना या ढूंढना? थोड़ा सा 2026 में मुश्किल ही लग रहा है। जी, थैंक यू। थैंक यू अनिल जी।
ये सेम चंद्र जी। हाँ, मुझे पूछने का है कि मैं अभी डिज़ाइन लाइन से ऑकल्ट एरिया में कोचिंग एंड एवरीथिंग चालू कर रहा हूँ, सो हाउ मच विल बी सक्सेसफुल इन अर्निंग एंड नेम एवरीथिंग, सो विद इन नेक्स्ट 2 months आई विल बी लॉन्चिंग दिस। ओके, सो हाउ मच के लिए तो टैरो करना पड़ेगा, बट इसमें यस और नो बता सकती हूँ। आई आस्क अ क्वेश्चन इन केस इफ यू हैव सक्सेस इन ऑकल्ट इंडस्ट्री। राइट। ओम श्रीं कपट नमो नमः। ओम श्रीं कपट नमो नमः। ओम श्रीं कपट नमो नमः। क्या चंद्र आकाश जी को होकर तो आई हैव गॉट 3 कॉडीज ओपन, तो थोड़ा सा मेहनत करना रहेगा। ओके। You will just have to put your actions in place correctly. ओके। So जब भी 3 ओपन आता है द आंसर इज मे बी। सो करंटली शायद आपको सेल्फ डाउट है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है मैं कैसे करूंगा, एकदम से इंडस्ट्री चेंज हो गई। दैट इज व्हाट माय साइकिक गाइडेंस टेल मी, दैट देयर इज सम सेल्फ डाउट। इफ यू आर नॉट 100% श्योर, द कॉडीज ऑल्सो विल नॉट बी 100% श्योर। ओके। ओके। ऑल द बेस्ट। यस Prashant, you can unmute yourself. I basically wanted to check. You went on mute again. So I basically wanted to check for my friend. He's been trying for a job for a long time now. Um, so his name is Tushar Mangera. So and I'm hoping by February he should get it. So if you can just check. So I have got answer as no, not by February 2026. So let me check for March if there is a possibility. By March, he will get. Okay, thank you. He is, I'm just getting this as guidance that he is not trying with the right resources. He's Yeah, applying for the job, but वो पूरा ऐसे जी जान लगाते हैं ना, वैसा I know. नहीं है। तो I've told that is him the the same thing from guidance my I get. readings also. Yes. And I've been trying to push. He's so demotivated, and I'm trying to, today also, I in fact gave him 50 references in terms of, recruiters myself from my phone. I said, just Wow. go ahead and then start applying, call everyone. I mean, at least कोई तो हाँ या कहीं पे तो, कुछ अगर लक हो जाए तो. हम्म तो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन ही मुझे आ रहा Yeah, है एज अ yeah, गाइड। yeah. True, true. You're correct. Okay, थैंक यू। thank you. यस मित्सुजी। Ma'am, will my this house get sold into 2026? ओके लेट मी, दिस हाउस मतलब आपको लोकेशन बोलना पड़ेगा। सो सी, ऐसी जब भी रीडिंग्स आएंगी ना प्रॉपर्टी के रिलेटेड, सो यू हैव Mm-hmm. टू आस्क देम द लोकेशन कि कहाँ पर Okay. है, तो ही वो Okay. स्पेसिफिक रहेगा। Baroda. रम्या आइडेंटिफाइड प्रोक्रेस्टिनेशन विद द साइकिक गाइडेंस, बड़ौदा। और Hmm. मतलब कोई एरिया का नाम आप बता पाओगी जहाँ आप रहते? Gotri Sevasi Road. ओके। ओम श्री कपट कपट श्री कपट कपट श्री कपट कपट हो जाएगा।
2026 में तो मुश्किल दिख रहा है मित्सुची। एक्चुअली मतलब गाइडेंस ऐसे आ रहा है कि आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हो। Yes. लेट मी चेक फॉर 2027 का जैन या फेब। आपका ना फेब 2027 तक दिख रहा है चांसेस। सो 2026 में तो नहीं, बट मोस्टली यू विल स्टार्ट गेटिंग द प्रोस्पेक्ट्स बाय ईयर एंड, और February 2027 तक आपको सेल हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी। Yes. Thank you, ma'am. वेलकम। आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में फिटकरी जरूर रखिएगा, उससे आपका जो Okay. प्रोसेस है प्रॉपर्टी सेलिंग का वो एक्सपेडाइट हो जाएगा। Okay. Okay. वेलकम। मैं बहुत सारी रीडिंग्स नहीं कर सकती हूँ, 2 दिन और लूंगी। यस नेहा जी। सो वी हैव two Nehas today in the class. Yes. Hi, ma'am. How are Yes. you? I'm good, dear. How are you? Thank you. I'm also doing good. Welcome. Though I have two questions, but I think people are there in the queue. I'll just ask Yes. one question. Ma'am, I'm a tarot card reader, and in February 22nd and 23rd, I've got an offer for an exhibition in a college. So I want to know, since it's gonna be my first exhibition for tarot cards, how will it go? Will it be good or um, We'll ask a question. आप मुझे कॉलेज का नाम बताइए। We'll ask a question. Will it be successful? Yes or no? ऐसे पूछते हैं। exactly the name is not clicking, but it is in Janakpuri. Okay, I let's ask Neha Malhotra का tarot exhibition in which month? February next month. Okay, so let's ask a question कि नेहा मल्होत्रा जी का टैरो एग्जीबिशन इन फेब 2026 सक्सेसफुल होगा या नहीं। ओम श्रीम कपत कपत नमो नमः। श्रीम कपत कपत नमो नमः। श्रीम कपत कपत नमो नमः। नेहा मल्होत्रा का टैरो एग्जीबिशन। It will be successful. Thank you. But Thank you just so take much. right actions. See, I have done exhibitions earlier. So if you need any guidance, I'll drop my number in the chat. You can ask me and I will help you prepare for your exhibition. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Welcome, welcome. Because I think I've done around 8 exhibitions so far in my occult Mhm. career, and it's been an amazing breakthrough. I'm sure you इससे are ना very नेहा experienced. मुझे ऐसा लग रहा है लाइक दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एज अ गाइडेंस कि आप है ना ओवर थिंकिंग बहुत करती हो। सो Yes. अबाउट योर एग्जीबिशन ऑल्सो यू हैव, सो डोंट गेट योर सेल्फ डाउट एंड अनक्लैरिटी फॉर दिस। अगर आप कर रहे हो तो कॉन्फिडेंटली आप करो। Hmm. ठीक है. ठीक है. Thank you. Thank you वेलकम, so much for your guidance, ma'am. वेलकम, वेलकम। यस मीनाक्षी जी। Hello, ma'am. हेलो। Ma'am, actually, it's Nitesh. Actually, it's Oh my yes, wife's phone. yeah, tell me Nitesh ji. Ma'am, actually, my question is also to a job related. I am about to give an interview in a day or two for a Okay. new company. Now, I have a confusion that I should give it, malab, whether it will be a long staying job if I go ahead for that interview. Actually, I have that confusion actually. So I don't know how to put the question in that way. सो यू वांट मी टू जस्ट चेक कि आप इंटरव्यू जाए या नहीं, करेक्ट? जो 2 दिन के बाद आपका कंपनी में मतलब जाना है आप। इस जॉब के लिए मुझे जाना चाहिए या नहीं, मतलब ठीक है। द इंटरव्यू आई एम गिविंग। ओके। आप मुझे 2 दिन के बाद है, राइट? सो आई लास्ट अ क्वेश्चन कि नितेश शर्मा जी को 16 तारीख को जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या नहीं। कंपनी का नाम, शुड आई टेल यू द कंपनी नेम? या इफ यू कैन इट विल बी ग्रेट। हाँ, इट इज मंजू एंटरप्राइजेस। द कंपनी नेम इज लाइक दैट, मंजू एंटरप्राइजेस। ओके। ओम श्रीम कपट कपट नमो नमः। ओम श्रीम कपट कपट नमो नमः। श्रीम कपट कपट नमो नमः। शर्मा जी को मंजू एंटरप्राइज में इंटरव्यू देना चाहिए।
फेवरेबल तो नहीं दिख रहा है नितेश जी. Okay, ma'am. You can try in some other company. Okay, okay. Thank you. Thank you very much, ma'am. Welcome, welcome. So before I take other readings, मुझे ना कुछ remedies भी आपको बतानी थी कौरी की, so that people won't leave the class and go, because I have prepared for these remedies to give you for your insomnia, for your wealth, client attraction, overall health के लिए. तो मैं वो remedies पहले बता देती हूँ और फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ कोमल जी एंड अल्पा जी. Is that okay? Great. So remedy आप लोग लिख लीजिए. Yes, I'm going to drop my number. I'll drop my phone number also. And how many of you would want to learn this? कितनी लोग कौरी विद्या सीखना चाहेंगे और अपने लिए एक डिवाइन गाइडेंस खुद निकालना चाहेंगे? So Meenakshi ji want to learn, Mitsuchi want to learn, Neha ji want to learn. Yes, Neha ji, you can, if you learn this, you can do this in your stall also, tarot reading के stall में. And it will be very nice. अच्छा experience है. In one of my exhibitions, I did pendulum, Kori, and tarot, and it was really good. It was the best exhibition ever. So I'm going to drop my number. ये नंबर मेरे पास होता है, टीम सिद्धि का नंबर है. यस रम्या जी, वेलकम. यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड. आई दिस इज द नंबर फॉर टीम सिद्धि शाह जो मेरे पास होता है. आप इसको सेव कर सकते हो, वसुधा एज वसुधा याना सीलिंग स्टूडियो या टीम सिद्धि शाह, एंड यू कैन रीच मी डायरेक्टली. सो नेहा जी, यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन द सेम नंबर so that I can give you some tips and guidance for your exhibition. So let's do the first remedy. First remedy हम आजकल है ना, like even I had insomnia, I was not able to sleep. अभी तो बहुत ही कम हो चुका है, बट 2 साल पहले बहुत ज्यादा था. तो आपने क्या करनी है, व्हाइट कॉडी लेनी है. ऐसी व्हाइट कॉडियाँ मिलती है, वो व्हाइट कॉडी लानी है. कितनी लानी है? 7 व्हाइट कॉडीज लानी है. उसको सॉल्ट वाटर से वॉश कर लेना है. और ये 7 कॉडीज को हाथ में पकड़ के बोलना है ओम नमः शिवाय 11 टाइम्स, 21 टाइम्स या 108 टाइम्स. और इसको आपके पिलो के नीचे रखना है फॉर 21 डेज. 21 डेज में आपका इंसोम्निया, क्रॉनिक इंसोम्निया पूरा गायब हो जाएगा. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कौरिया फैल जाती है जैसे पिलो के नीचे रखेंगे साथ, तो आप व्हाइट कलर की पोटली में इसको डाल सकते हो, व्हाइट कलर के रुमाल में बांध सकते हो, किसी भी व्हाइट कपड़े में. 7 कौड़ियाँ लेनी है, सॉल्ट वाटर से वॉश करना है, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है और पिलो के नीचे रखना है. सो डेली आप क्या करोगे, यू विल टेक द 7 कॉडीज एवरी डे इन योर हैंड, कीप इन योर लेफ्ट हैंड, कवर विथ योर राइट हैंड, चैंट ओम नमः शिवाय एंड कीप इट अंडर योर पिलो. उस पोटली को पिलो के नीचे रख दीजिए. दिस विल हेल्प यू टू ओवरकम इंसोम्निया प्रॉब्लम. एंड दिस इज अ रेमेडी जो बहुत लोग थेरेपी नहीं ले सकते या फिर महंगी एक्सपेंसिव रेमेडीज नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि कॉरीज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव. वाइट कॉरी एकदम अच्छी क्वालिटी की हमको 30 to 40 रुपीज में एक मिल जाती है, एकदम बेस्ट क्वालिटी की. और इससे थोड़ी हल्की क्वालिटी वाली 10-15 रुपए में ही एक मिल जाती है. So it's an remedy which is under 100 rupees, and it will help you to get peaceful sleep. The next remedy is for wealth. इसमें हमको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको खरीदना भी शुक्रवार के दिन ही है कौड़ियाँ. 11 व्हाइट कौड़ी या 11 येलो कौड़ी, दोनों में से एक शुक्रवार के दिन खरीदना है मॉर्निंग में, और संध्या काल में करनी है ये रेमेडी. एक रेड कलर का कपड़ा लेना है, उसमें कौड़ियाँ डालनी है, उसी के साथ में एक सिक्का रख देना है. कोई भी सिक्का, जो भी कंट्री में आप रहते हो उसका सिक्का रख सकते हैं, इंडियन रुपीस रख सकते हैं, कुछ भी एक सिक्का रख देना है. ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है 21 टाइम्स, 51 टाइम्स या 108 टाइम्स. और हमेशा ये आपके कैश बॉक्स में रखना है. इससे आपकी इनकम में स्टेबिलिटी आएगी, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं. अगर आपकी शॉप है तो आप कैश बॉक्स में रख सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू टू हैव स्टेबल इनकम. तीसरी रेमेडी है क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए, जो हम बिजनेस करते हैं उसकी क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए, और हमको अच्छे क्लाइंट्स मिले. तो आपने क्या करनी है, 9 कौड़ियाँ लेनी है, सिर्फ पीली कौड़ी, उसको एक हरे कपड़े में डालना है
और ओम श्रीम श्रियाय नमः, ओम श्रीम श्रियाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 108 टाइम्स, और आपके ऑफिस के ड्रॉवर में रखना है, वर्क बैग में रखना है। तो इससे आपको आपकी एनर्जी से अलाइंड क्लाइंट्स मिलेंगे और आप डील्स भी वैसे क्रैक कर सकते हो। तो आप इस कौड़ी के कपड़े पोटली को, ग्रीन पोटली को अपने साथ मीटिंग में लेकर जा सकते हो, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप जा रहे हो। ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, सो ओवरऑल हेल्थ के लिए हमने क्या करना है, 5 वाइट कौड़ी लेनी है और उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। हमारी बॉडी से, हमारे क्राउन चक्रा से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, और ये घुमाते समय ओम ओम की चैंटिंग करते रहनी है। और इसको अपने बेड के पास रखना है या आपकी ऑल्टर पे रखना है, आपका ओवरऑल एनर्जी बैलेंस रहेगा इसमें। सो दीज आर सम ऑफ द सिंपल कौरी रेमेडीज जो आप कर सकते हो। कौन सा रिपीट करना है अल्पा जी? द लास्ट वन? ओके, हेल्थ वाला। सो यू हैव टू टेक 5 वाइट कौरीज, 5 वाइट कौरीज लेनी है और आपके क्राउन चक्रा से क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाना है। लाइक दिस यू विल रोटेट, और जब भी ये रोटेट कर रहे हो तब ओम की चैंटिंग करनी है। ओम बोलते हुए, चैंट करके हुए इसको रोटेट करना है अपने क्राउन चक्रा से। और इस कौड़ी को आपके बेड के पास रखना है, पिलो के पास रखना है या ऑल्टर पे रखना है। इससे आपका ओवरऑल एनर्जी बैलेंस रहेगा। द फ्राइडे वाला मंत्र इज ओम श्रीम श्रियाय नमः। पूनम जी, दिस हेल्थ रेमेडी यू कैन डू इट, इसमें नंबर ऑफ डेज नहीं बोला है मैंने, बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड दैट एनर्जी बैलेंस ऑलमोस्ट एवरी डे। तो वॉट, जब भी तक आप करना चाहो तब तक आप कर सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कोमल जी का क्वेश्चन इज। यस कोमल जी। हेलो। यस कोमल जी बोलिए। हाय। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आई हैव लर्न द वास्तु एज वेल, सो आई वांट planning to continue career in my vastu thing. So will it become successful? Like, should I start it from this year, like 2026, ओके as a vastu consultant? ओके। ओम श्रीम कपाट कपाट नमः, श्रीम कपाट कपाट नमः, श्रीम कपाट नमः। Komal ji, I have got 3 queries open, and whenever we get 3 queries open, the answer is maybe. So maybe you have to work a little more towards being making yourself as a Vastu consultant. So just check कि क्या आप सही मार्केटिंग कर रहे हो, क्या आप खुद को अच्छे से प्रमोट कर रहे हो, क्या आपकी नॉलेज पूरी हो गई है, और इज देयर एनी अपग्रेड दैट यू नीड, वो आप एक बार देख लीजिएगा। Okay, okay, fine. All right. Yeah, thank you. वेलकम वेलकम। ये सल्पा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते अल्पा जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि क्या इस साल मैं अपना नया घर ले पाऊंगी 2026 में? ओके। Yes, Anjuji, I will share the recording of this knowledge call. We will send it for about a week ताकि आप notes बना पाओ, and then we will remove the access. ओम श्रीं कपट कपट नमो नमः, ओम श्रीं कपट कपट श्रीं कपट कपट। ये सल्पा जी, यस आया है आंसर। फुल सब ओपन आई है? 2 ओपन आए हैं। 2 ओपन आए। ओके मैम।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट एंड जरूर बताना मुझे जब हाँ आप जी घर जरूर। खरीद लोगे। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। सो घर खरीदने के लिए ना आप एक वैदिक स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हो, श्री हाँ जी। लक्ष्मी नारायण दिव्यधाम। So whoever wants to buy your own house, you can chant this Vedic switch word, Shri Lakshmi Narayan Divya Dham. मैंने चैट में भी डाल दिया है। इसको ओके 108 टाइम्स बोलना है डेली। जिनको भी अपना खुद का घर बनाना है उनके लिए ये वैदिक स्विच वर्ड है, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सी सक्सेस स्टोरीज है इसकी मेरे पास। श्री ओके। लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। इससे कोई ब्लॉकेज भी अगर आ रहा है घर खरीदने में वो हट जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड। वेलकम वेलकम। सो लेट मी, ओके पूनम जी, आई डू अ रीडिंग फॉर यू। डू यू वांट मी टू चेक इफ 2026 में आप कार खरीदोगे या नहीं? ओके। ओम श्रीम कपट कपट नमो नमः। श्रीम कपट कपट नमो नमः। ओम श्रीम कपट कपट नमो नमः। पूनम जी मुझे 3 कौड़ियाँ ओपन आई है, सो द आंसर इज मे बी। So let me show you the beautiful offer that we have created for you, जहाँ पे आप divination mastery कर सकते हो। Like you can, this is the divination mastery bundle, जिसमें हम सिर्फ कौरी ही नहीं, हम कॉइन डिविनेशन, पेंडुलम डाउजिंग, ये सब कुछ सीखेंगे। सो ये कोर्स किसके लिए है? जस्ट फॉर बिगिनर्स, क्यूरियस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हीलर्स, कोचेस, टैरो रीडर्स, जिनको भी क्लैरिटी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, एनर्जेटिक गाइडेंस चाहिए। ये उन सारे इंडिविजुअल लर्नर्स के लिए है जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। कौरी रीडिंग में हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे हिस्ट्री, कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसको क्लेंस कैसे करें, चार्ज कैसे करें, कौरी को स्टोर कैसे करें, मंत्रस कौन से हैं, यस और नो तो हमने आज ही सीख लिया है। इसके अलावा हम सीखेंगे प्लैनेट वाइज रीडिंग, चक्रा के रीडिंग्स, मैच मेकिंग, रिलेशनशिप, मनी, करियर के रिलेटेड क्वेश्चन। और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कोर्स होगा, इसमें कोई थियोरी नहीं है। So everybody has to bring the Gauri and we will be learning it practically in the class, all the spreads. कॉइन डिविनेशन में हम कॉइन की एनर्जी को समझेंगे, करेंसी आया कैसे, कॉइन्स कैसे आए उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री, 25 कॉइन्स की रीडिंग, यस और नो के क्वेश्चन, और टेक्निक सीखेंगे कि कैसे हम कॉइन डिविनेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंडुलम डाउजिंग। सो पेंडुलम डाउजिंग में एक सबसे बड़ा यूएसपी हमारा है जो है जियोपैथिक स्ट्रेस। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट जियोपैथिक स्ट्रेस, मुझे चैट में बता दीजिए। थैंक यू पूनम जी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड जियोपैथिक स्ट्रेस? कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? ओके, डॉक्टर अलीना नोज, अंजू जी डजंट नो। हमारी so 70% of our land is water, right? And most of our buildings are made on the marshland, that is पानी वाले लैंड में। so deep within जो पानी का बहाव होता है और उससे जो स्ट्रेस आता है उससे कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। और ये हर किसी के घर में होता है। इन अब्रॉड जब तक जियोपैथिक स्ट्रेस कंसल्टेंट सिग्नेचर ना करे वहां बिल्डिंग नहीं बनती है। अब्रॉड में इसको बहुत महत्व दिया जाता है एंड जियोपैथिक स्ट्रेस इज सो डेंजरस कि वो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी हमें ला सकता है। तो हम ये सीखेंगे कि हम हमारे घर पर जियोपैथिक स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कैसे करें और उसको निकालें कैसे। जरूरी नहीं है मेरे घर में हर रूम में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, जिस भी रूम में है, जिस भी कॉर्नर में है, हम उसको निकालना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे हम ऑरा की क्लेंसिंग कैसे करें, चक्रा की क्लेंसिंग करें, पेंडुलम से हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं। सो देर आर सम हीलिंग्स दैट वी कैन डू यूजिंग पेंडुलम। यस नो मे बी की कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, पेंडुलम के चार्ट्स से रीडिंग कैसे करेंगे, और बिना चार्ट्स की रीडिंग कैसे करेंगे, ये पूरा पूरा हम सीखेंगे।
इसमें हमको लगेंगी 30 कॉडीज। आप हमसे भी ले सकते हो, वी हैव एनर्जाइज कॉडीज। 30 कॉइन्स लगेंगी, सेम डिनोमिनेशन, किसी भी करेंसी, कोई भी कंट्री का हो सकता है। एक पेंडुलम लगेगा, क्रिस्टल या मेटल का, मैं रिकमेंड करूंगी क्रिस्टल। नोटबुक, पेन और प्रिंटेड पेंडुलम के चार्ट्स। हम आपको प्रिंटेबल्स भेजेंगे, आपको प्रिंट करना है जितना नेसेसरी है, सारी प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोनस क्या मिलेगा? 40+ पेंडुलम चार्ट। आपको 1 साल तक रिकॉर्डिंग मिलेगी, सो इट इज नॉट 3 months, यू विल बी हैविंग द कोर्स रिकॉर्डिंग फॉर 1 year एंड यू विल हैव फॉर एवर व्हाट्सएप सपोर्ट। व्हाट्सएप ग्रुप हम कभी बंद करते ही नहीं है, हमेशा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ओपन ही होते हैं। इसी के साथ हमको मिलेगा एक इंट्यूशन मेडिटेशन जो सिद्धि जी की वॉइस में हमने रिकॉर्ड करा है। आपको एक स्पेशल क्लेंजिंग स्प्रे की रेसिपी मिलेगी जो आप यूज करोगे खुद बनाकर अपने ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए। कोर्स का शेड्यूल क्या है? हमारा कोर्स शुरू होगा 18 और 19 को कॉरी रीडिंग का, 6 बजे से 8 बजे। 20 तारीख को कॉइन डिविनेशन का, और 27 और 28 को पेंडुलम डाउसिंग का, और टाइमिंग इज गोइंग टू बी 6 PM to 8 PM। और अगर आप नहीं आओगे तो डोंट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, यू विल गेट द मटीरियल। सो अगर हम सिर्फ कॉरी सीखना चाहे, कॉइन सीखना चाहे या पेंडुलम सीखना चाहे, तो एक एक मोडालिटी की प्राइसिंग इज 2000 रुपीज, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी पेइंग दैट। आप ये पूरा का पूरा जो डिविनेशन मास्टरी बंडल है, सिर्फ और सिर्फ 3333 में सीख सकते हो। 3333। I am open to answer all your questions. So 3333 में we are going to learn 3 modalities: coin, Cori, and pendulum, with all the bonuses and forever WhatsApp support. So जो भी सीखना चाहता है, I'm going to post the link in the Zoom chat. I will also send the QR code in the chat box on the WhatsApp group, as well as I will send it in the Zoom chat. If you have any questions regarding the course, regarding anything, please feel free to unmute yourself and you can send it to, you can ask your questions. मैम आपको दिक्कत ना होती तो हमें आपका ग्रुप में ऐड कर सकते हैं क्या? यस यस, मैं ग्रुप की लिंक सेंड करती हूँ, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इट इज टोटल ऑफ 5 days कोर्स, 2 days कॉरी, 2 days पेंडुलम एंड 1 day कॉइन। 5 दिन का कोर्स है हमारा। ओके यस कोमल मैम, जी। मैं फीस 2 बार दे सकती हूँ क्या? आप मुझे मैसेज करिए, जो मैंने नंबर डाला है ना, इस पे आप मुझे मैसेज करिए। मैंने नोट नहीं किए एक बार नंबर। ओके, मैंने फिर से डाल दिया है। आप मुझे मैसेज करिए, हम सिद्धि जी से परमिशन ले लेंगे। अगर वो अप्रूव कर देती है तो हम आपको वो सुविधा अवेलेबल करके दे देंगे। ओके मैम, थैंक यस कोमल जी, गो है। या एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू नो, जैसे कि आपने बताया जियोपैथिक स्ट्रेस का, हम लाइक विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम वी कैन चेक इट, ओके। करेक्ट। तो लाइक विल वी गेट द रेमेडीज आल्सो, लाइक अगर यहाँ पे ये लोकेशन पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, सपोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, यस, तो द सिंपल रेमेडीज विल बी टॉट इन द क्लास, कि आप कौन सा एलिमेंट उधर रख के उसको बैलेंस कर सकते हो। रॉड रखना है, कौन सा रत्न रखना है, कौन से क्रिस्टल रखने हैं, उसको बैलेंस करने के लिए ये आपको सिखाया जाएगा। okay, with the help of essential oils also can we balance that? Do you have I any will be idea? giving you crystal remedies in the Yes, class, okay. because Uh-huh. crystal remedies works very well, and there are geopathic stress rods जो हमको मिलते हैं मार्केट में। It is a वास्तु product. Yes. So That I'm aware about the rods, yes, but I because you was are a vastu consultant. yeah. Yeah, So I yes. was planning like if I can get something else also, like going other than going for rods, We will like be so what I give is the crystal remedy and the spice remedy. crystalline Spice, spices, herbs. हमारे spices है, उससे भी हम Uh-huh. बैलेंस कर सकते हैं। Okay. Okay. So that will be given in this. Yes, it will be given. So the general remedies what you can do will be given. Mm-hmm. Okay. Okay. Fine. Thank you. Welcome.
यस हेमचंद्र जी। हमारा भी बेंगलोर है, तो उसमें भी जियोपैथिक स्ट्रेस इज देयर बिकॉज ग्राउंड फ्लोर पे पानी आता है ऊपर, थोड़ा थोड़ा बारीक. So ओके could be substantial water. So वो रेमेडी will be done through by pendulum dowsing का हेल्प लेके, या any other मिस सो पेंडुलम डाउसिंग से हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते करेंगे. हैं, एंड जनरल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी कि क्लियर कैसे करना है ये स्ट्रेस को, वहां पे कौन सा क्रिस्टल हम रख सकते हैं, इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं विद सिंपल रेमेडीज, वो सिखाया जाएगा कोर्स में। उसमें मेनली हेल्थ के ऊपर यस इफेक्ट होता है थोड़ा, पर है ना. करेक्ट। And suppose pendulum dowsing already I am actually learned also and practicing. But to get a right answer, 100% right, कभी कभी क्या होता है कि suppose he to please myself, हम्म whatever intention subconscious mind चाहता है, वो आंसर दे देता है. सो इट कुड बी अ रॉन्ग आंसर. ऐसा मुझे एक आंसर रॉन्ग मिला था. तो अच्छा हाउ टू गेट दैट 100% राइट विदाउट एनी इमोशनल अटैचमेंट टू द पेंडुलम. दो में सब वो जो भी है क्लींसिंग एंड एवरीथिंग सब किया था, तो भी. ओके। तो ये अभी हम लोग चेक बिना चेक करे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट इन द कोर्स दैट वी आर टीचिंग एट याना हीलिंग स्टूडियो वी हैव गॉट सो मेनी गुड रिजल्ट्स। मतलब वो बोलते कि ऐसा पेंडुलम डाउसिंग हमने कभी सीखा ही नहीं है। लाइक दे थिंक दे आर गेटिंग राइट आंसर्स, जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं। ओके. थोड़ा सा इसमें हमारी एनर्जी के ऊपर भी होता है, ओके. और हम बट वी विल लर्न द प्रोसेस, हम पूरा का पूरा प्रोसेस सीखेंगे, दैट हाउ आर वी गोइंग टू मेक श्योर दैट आवर पेंडुलम इज टोटली अलाइंड विद आवर सेल्फ। एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ मेडिटेशन जो आप कर सकते हो फॉर ओके. एनहांसिंग योर इंट्यूशन, फॉर मेंटेनिंग योर एनर्जी बैलेंस एंड एवरीथिंग। सपोज एक ही चाहिए पेंडुलम डाउजिंग, तो अगर सिर्फ पेंडुलम डाउजिंग सीखना है तो इट इज 2000, और पूरा बंडल लेना है तो 3333। मगर वो बाकी कॉइन और सब आप आपसे परचेस करना पड़ेगा, तो दैट इज नहीं, हाउ कॉइन्स मच. तो आपको अरेंज करने हैं, कोई भी 5 रुपीज के 30 कॉइन्स, 10 रुपीज के 30 कॉइन्स, 1 रुपी के 30 कॉइन्स, सेम डिनोमिनेशन का 30 कॉइन्स अच्छा, लेना। जिस स्टैंडर्ड कॉइन ओनली. करेक्ट, स्टैंडर्ड कॉइन ओनली। ओके. ओके. वो कॉइन्स परचेज नहीं करना है, बस कॉडी आप हमसे ले सकते हो। एंड बाकी जो है जैसे पेंडुलम अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप वही यूज कर सकते हो। वी विल लर्न ऑन हाउ टू कैलिब्रेट इट, हम सीखेंगे उसको कैसे कैलिब्रेट करें प्रॉपरली। हाँ, मेरे पास तो ब्रास का भी है, आइसिस आइसिस पेंडुलम है, और हाँ क्रिस्टल का भी है, सब है, दो चार पांच वैरायटी के. हाँ, तो बस आप वही यूज कर सकते हो, आपको पेंडुलम खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉडी आपको लेना रहेगा। वो आप लोकल शॉप से भी ले सकते हो या फिर आप हमसे ले सकते हो। ओके. ओके. ठीक है, थैंक यू. वेलकम। टोटल इज 3333, 333 फॉर ऑल द थ्री मोडालिटीज। I will send the QR code. I've sent the message in the group. मैंने ग्रुप में भी भेजा है थर्ड आई में। I've sent out the link कि क्या क्या कवर होगा, ये सब कुछ उस लिंक में भी है, एंड विल ऑल्सो सेंड द QR कोड। QR कोड भी भेज देती हूँ मैं, सो कैन मेक द पेमेंट ऑन QR कोड। Any questions? Thank you Poonam ji so much. Yes, you can. Thank you so much. At Yanas, we do believe in giving everything wholeheartedly. Okay, Neha ji का हो गया है. Anyone wants to know anything else about the course? Anything? So आप पूछ सकते हो, or else then we will end our class today and connect in the further upcoming. कल गायत्री मंत्र का है ना, सुबह के 11 बजे. Yes,
तो सुबह नहीं है, 11 बजे, 9 बजे है गायत्री मंत्र का। 11 बजे 9 बजे? हाँ, रात को 9 बजे है। अच्छा, रात का 9 बजे। यस यस, रात आप के ही 9 आप बजे। ही रहने वाले कि मैडम, सिद्धि नहीं, मैम? एक दूसरे एक्सपर्ट है हमारे, सपना मेंगानी करके, वो लेने वाली है। ओके ओके, ठीक है। अभी मेरा ये कौरी का कोर्स आ रहा है, एंड देन वी विल हैव नवरात्रि में देवी दीप साधना, ऑन हाउ वी कैन डू लैम्प साधना ड्यूरिंग गुप्त नवरात्रि। तो वो वाला कोर्स आएगा अभी, जिसमें हम सीखेंगे कि हर दिए को कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, कौन सी बाती, नवरात्रि में उसका क्या महत्व है, हाउ कैन बी वर्क ऑन बैलेंसिंग आवर एनर्जी ओनली थ्रू लैम्प्स। उसका कोर्स अभी आएगा, 19th को होगा मोस्टली, क्योंकि नवरात्रि में इसको करना बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। Ma'am, can you share those details, ma'am? Yes, yes, I will send out the details. Okay, so I have sent out the details for the Cody also. I'm sending just the QR code is pending. I will send the QR code in the group. Whoever is interested in learning this can go ahead and enroll. All of them who have already enrolled, we will add you to the group very soon. हम कल ऐड कर देंगे। Thank you so much for joining us and looking forward to see you in upcoming. कल हमारा गायत्री मंत्र का workshop है, which is happening only for 99 rupees. So if anybody is interested, do send me the message and I will send you the details on how you can enroll for this workshop, जिसमें गायत्री मंत्र का सब कुछ सिखाया जाएगा कि 24 syllables का मतलब क्या है, कैसे बोलना है, what is the correct way, कब दीक्षा की जरूरत होती है, कब नहीं होती है, संध्या वंदन क्यों करते हैं, व्हाट इज दैट इनिशिएशन, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय आवर एक्सपर्ट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एंड थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी कौरिया यूज करिए, यू कैन यूज अ पाउच लाइक दिस। कौरी के साथ में आप भीमसेनी कपूर भी रख सकते हो, बिकॉज इट क्लेंसेस द ऑरा ऑफ कौरी, और कौरी में कीड़े नहीं लगेंगे। सो ऑलवेज कीप अ पीस ऑफ भीमसेनी कैम्फर। Thank you so much for joining me Thank you, today. Vasudha ma'am. Thank you, Thank you, Meenakshi. Vasudha ma'am. Taking your class in the morning like makes my whole day complete, ma'am. Thank you. Thank you so much, Meenakshi. Thank you. Thanks, ma'am. Thank you. Thank Bye. Yes, Thank bye. you. Bye. Bye, bye.